Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 6 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। So back to what I was saying. Could be us. Today, class 6 students, we are again going to continue with chapter 9, ratio and proportion. And we are going to continue with exercise 9.1. And today's part is part 2. Those who have not watched the previous part, that is the introduction part, I have shared the link at the end of the video. So do watch that part and then you see so that the concept will be clearer and it will be easy for you to solve these sums. Okay, now let us see what they have told us in question number 2. Express the following ratios in their simplest form. That means these sums I have to do it in their, I have to express it in their simplest form. Simplest form, already I told you, there will be only one factor, that is 1, and there will be no other common factor. Okay, only common factor has to be 1 only. Okay, so how we will start this sum number A, 14 is to 49. तो इसको 14 is to means I can write divided by 49. इसके बाद हम लोग काटाकाटी करेंगे तो 7 से जाएगा, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49. सो क्या आ गया 2 by 7. सो 2 by 7, 2 का 1 है फैक्टर, एक तो 7 का भी 1 है फैक्टर, तो 1 is the only common factor and there is no other common factor, so it is in the simplest form. So I can write 2 is to 7 and this is the answer. इसके बाद चलो नंबर B, 6 by 32. तो इसको काटेंगे 2 से, 2 3 जा 6 और इसको काटेंगे 2 1 जा 2 and 1 is extra 12, 2 6 जा 12. So 3 by 16 आ गया, ठीक है, 3 को थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 3 by 16. सो 3 is to 16 और ये आ गया हम लोगों का आंसर. अभी नंबर सी एकदम इजी है, ठीक है, 15 is to 36. सो 15 by 36. अभी इसको काटेंगे, क्या से काटेंगे, 3 से काटेंगे. 3 5 जा 15 एंड हियर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. और काटेगा, नहीं काटेगा. सो 5 by 12, इसको लिखेंगे 5 is to 12 और ये आ गया हम लोगों का आंसर. अभी नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 2 का डी, 104 डिवाइडेड बाय 168. तो हम लोग बड़ा नंबर से भी काट सकते हैं, छोटा नंबर से भी. सो छोटा से काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 10, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4. अभी फिर से काटेंगे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8. तो कितना आ गया 52 by 84. फिर से हम लोग काटेंगे, ठीक है. चलो हम लोग अभी थोड़ा बड़ा नंबर से काटते हैं, चलो 4 से काटते हैं. सो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ठीक है. और इसको भी काटेंगे, 4 1 जा 4, एक्स्ट्रा इज व्हाट 1, सो 12, 4 3 जा 12. सो व्हाट यू गेट 13 by 21. तो इसको लिख सकते हैं 13 is to 21 और ये आ गया हम लोग का answer. Now we will solve question number 3. So what it is telling, express the first quantity as a ratio of the second quantity. So this is very important. First quantity, पहला quantity as the ratio of the second quantity, मतलब दूसरा quantity. हम लोग को express करना है. We have to express पहला quantity to the second quantity, मतलब पहला quantity to second और दूसरा quantity. Okay, so that means first quantity is to second quantity. And how the sums are given, 80 paisa comma rupees 2. So why here they have told this one, first quantity as the ratio of the second quantity. हम लोगों ने properties सीखा है. Properties में जो order है, order of the term, it is very important. तो here first quantity is to second quantity बोल दिया है. So first quantity ये है, second quantity ये है, तो ये इज टू ये, ठीक है. अगर बोलता सेकेंड उसके बाद फर्स्ट, तो सेकेंड क्वांटिटी इज टू फर्स्ट क्वांटिटी और फर्स्ट इज टू सेकेंड इज नॉट इक्वल टू
second into first. Clear no? So that's why they have told here what order you have to follow. First quantity is to second quantity. So answer लिखेंगे answer. So first quantity क्या है 80 पैसा is to rupees 2. ठीक है, तो 80 पैसा हम लोग लिखेंगे, उसके बाद डिवाइडेड बाय रुपीस 2 लिखेंगे. अभी देखो दोनों यूनिट सेम नहीं है, तो हमको यूनिट सेम करना है. सो 80 पैसा लिखेंगे और रुपीस 2 को क्या करेंगे, पैसा में कन्वर्ट कर लेंगे. 1 रुपी मीन्स 100 पैसा. ओके, सो इनटू 100 और आ गया इधर में पैसा. तो पैसा पैसा कट्स. नाउ यू कैन कट मोर. सी दिस 0 एंड दिस 0. ठीक है, नाउ 2 1s are 2, 2 4s are 8. अभी ये दोनों को फिर से काट सकते हो. 2 2s are 4, 2 5s are 10. सो क्या बचा है ऊपर में 2 और नीचे में 1 इंटू 5 5. तो आ गया 2:5 और ये आ गया हम लोगों का आंसर. ठीक है, अभी हम लोग सेकेंड सम करेंगे. ठीक है, तो सेकेंड सम भी वैसा करके आंसर. तो क्या लिखेंगे 50, थोड़ा इधर से शुरू करते हैं. 50 मीटर इज टू 1 किलोमीटर. सो नाउ 50 मीटर डिवाइडेड बाय 1 किलोमीटर. सो इधर में भी देखो यू कैन सी द यूनिट्स आर नॉट सेम. यूनिट सेम नहीं है, ये मीटर है ये किलोमीटर है. तो कैसे करेंगे, 50 मीटर ऐसे ही रखेंगे, 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो 1 किलोमीटर मीन्स हाउ मेनी मीटर्स. ओके, 1000. सो 1 इंटू 1000, उसके बाद आ गया मीटर. अभी मीटर मीटर कैंसिल करेंगे, 0 0 कैंसिल करेंगे. उसके बाद 5 1s are 5 और 100 को काटेंगे, 5 2s are 10 देन 0. सो व्हाट यू गेट, ऊपर में 1 और नीचे में 1 इंटू 20 20. तो आ गया 1:20 एंड दिस इज द आंसर. क्लियर. नाउ नंबर सी क्या है, 5 years और कॉमा 6 months. तो इसको लिखेंगे 5 years is to 6 months. तो इधर में भी देखो यूनिट सेम नहीं है, तो 5 years लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 6 months. ठीक है, अभी 6 months ऐसा ही लिख देंगे. ओके, कुछ चेंज नहीं. अभी 5 years को मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे. तो 5 इंटू 1 year मीन्स हाउ मेनी मंथ्स, 12. सो वी विल राइट 12 एंड इट विल कन्वर्ट इंटू मंथ्स. अभी मंथ्स कैंसिल हो गया. अभी इसके बाद हम लोग 6 और 12 काट सकते हैं. 6 1s are 6, 6 2s are 12. ठीक है, तो क्या पड़ा है ऊपर में 5 इंटू 2 10 और नीचे में 1. दैट मीन्स 10:1 और ये आ गया हम लोगों का आंसर. ठीक है, अभी नंबर डी. चार्टो सम है A B C D. सो आंसर लिखेंगे 800 ml मतलब मिलीलीटर इज टू 5 लीटर. तो इसको कैसे लिखेंगे, 800 मिलीलीटर और नीचे में 5 लीटर. तो इधर में भी देखो यूनिट सेम नहीं है, तो यूनिट्स अगर सेम नहीं है हमको उसको कन्वर्ट करना है. मिलीलीटर रख देंगे, लीटर को कन्वर्ट करेंगे. सो 5 इंटू, सो 1 लीटर मीन्स हाउ मेनी मिलीलीटर्स. ओके, सो 1000 मिलीलीटर. अभी मिलीलीटर कैंसिल हो गया. अभी इधर का 2 जीरो, इधर का 2 जीरो नीचे का कैंसिल कर दिया. और अभी क्या पड़ा है 8. एक बार लिखते हैं. ठीक है, तुम लोग नहीं लिखकर भी कर सकते हो. ओके, सो नाउ वी कैन कट अगेन. ओके, सो 2 4s are 8, 2 5s are 10. सो ऊपर में क्या है 4, नीचे में क्या है 5 इंटू 5 25. सो आ गया 4:25. ठीक है, तो ये आ गया हम लोग का आंसर. सो आई होप question number 3 A B C D you have understood. Now class 6 students, we will solve question number 4. So let us see what they are telling us. Find two equivalent ratios. So you have to find out two equivalent ratios of the following ratios. Okay, so one ratio is given and you have to find out two, मतलब दो ठो equivalent ratio निकालना है. तो how to do? So for finding out two, I will write 2:3 like this way, 2/3. I will write one time, again I will write another time. Clear? Now after that
I will draw here one line, here one line. Okay, and 2 by 3 I will write here also, again 2 by 3. Now after that, to find out the equivalent ratio, we have to multiply both numerator and denominator with a non-zero number. ठीक है, मतलब हमको जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करना है, जीरो को छोड़कर हम लोग कुछ भी नंबर ले सकते हैं। अगर हम लोग 1 लेंगे तो फिर वही सेम ही आ जाएगा, तो 1 को भी नहीं लेंगे, उसके बाद लेंगे क्या लेंगे, 2 लेंगे, तो 2 ऊपर में भी नीचे में भी, तो क्या आ गया 4 by 6, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो ये आ गया व्हाट 4:6, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है, सो 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, तो आ गया क्या 6:9, ठीक है। तो आ गया हम लोग का दो ठो इक्विवेलेंट रेशियोज, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, और हेंस वी कैन राइट 4:6 एंड 6:9 are the two equivalent ratios. किसका? Of 2:3. ठीक है, that means I have already told you in English. Now in Hindi 2/3 I will write, दो बार 2/3 लिखेंगे, क्योंकि दो ठो इक्विवेलेंट रेशियो निकालना है। उसके बाद इक्वल टू देंगे, उसके बाद लाइन ड्रॉ करेंगे और 2/3 फिर से लिखेंगे, और न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला और डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला को हम लोग एक तो नॉन जीरो नंबर से, मतलब वी विल नॉट, हम लोग जीरो नहीं लेंगे, ठीक है, जीरो को छोड़कर हम लोग कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो तो सेम ही आ जाएगा, हमको तो दो ठो इक्विवेलेंट रेशियो निकालना है, तो 1 भी नहीं लेंगे, तो क्या से मल्टीप्लाइंग करेंगे, तो एक बार 2 से करेंगे ऊपर और नीचे, और दूसरा वाला हम लोग करेंगे 3 से ऊपर एज वेल एज नीचे, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट रेशियो आ गया। अभी हम लोग नंबर बी करेंगे, तो नंबर बी ऑल्सो सेम वे 5:4, कैन आई राइट 5/4, उसके बाद 5/4 इज इक्वल टू देंगे, ऐसा करके लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 5/4 लिखेंगे, 5/4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई साइन देंगे, ठीक है। हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई साइन देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ऊपर नीचे सेम नंबर से तुमको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 10/8, सी 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, और ये आ गया 5 3 जा 15 और 4 3 जा 12, तो इसको लिख सकते हैं 10:8, इसको लिख सकते हैं 15:12। अभी कैसे लिखेंगे, हेंस भी लिख सकते हैं, हेंस 10:8 एंड 15:12 are the two equivalent ratios of क्या, किसका है 5:4, so 5:4। so मेरा ख्याल से हाउ टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेशियोज तुम लोग को मालूम हो गया होगा, ठीक है। सो 2:3 ये तुम लोग को पता है कैसा निकालना है, और सेकेंड वन नंबर बी 5:4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4C, सो व्हाट इट इज 27:9, सो 27:9 का इक्विवेलेंट निकालना है, सो आई विल राइट 27/9, और एक बार लिखेंगे 27/9, फिर ऐसा लाइन आई विल ड्रॉ एंड देन आई विल राइट 27/9, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सो 27 × 2 54, ठीक है। तुम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते तो रफ में कर लो, ऐसा करके 27 × 2, 2 7 जा 14, 1 2 2 जा 4 5, सी 54, अगेन डाउन साइड ऑल्सो विथ 2, दैट मीन्स 9 2 जा 18, तो आ गया 54:18। अभी इसको फिर से करेंगे, ये वाला 27/9, सो मल्टीप्लाई, मैंने और एक तो बात बोला था डिवाइड भी कर सकते हो, तो इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइड भी पॉसिबल है, ठीक है। चलो इसको डिवाइड करके करते हैं, सो सपोज वी विल डिवाइड बाय 3, ओके, बिकॉज 3 कैन बी डिविजिबल
27 also and 9 also. Okay. So now 27 divided by 3. So 3, how much are 27? 3 9s are 27. 9 divided by 3 means what? 3, how much are 9? 3 3s are. So you get 9 by 3. So 9 is to 3. So this is also possible. You can multiply with 3 also. Clear? So therefore, what I can write, 54 is to 18 and 9 is to 3, okay, are the two equivalent ratios of what? 27 is to 9. और ये आ गया हम लोग का आंसर. ठीक है. नाउ नंबर डी. तो आंसर लिखेंगे तो 7 by 35, अगेन वन मोर टाइम 7 by 35 इक्वल टू देंगे एंड देन आई विल ड्रॉ द लाइन 7 by 35. ठीक है. तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 से मल्टीप्लाई करने से कितना होगा? 7 2 14 और 35 into 2 70. If you cannot multiply, you do in the rough. 35 into 2, 2 5s are 10, 1 2 3s are 6 7, so 70 आ गया. और 7 2s are 14, तुम लोग सब जानते हो. ठीक है. उसके बाद 7 by 35. चलो इसको डिवाइड करते हैं. ठीक है. इसको डिवाइड करेंगे. उसके पहले इधर में चलो लिख लेते हैं 14 is to 70. ठीक है. अभी डिवाइड जब करेंगे, डोंट टेक 3 because 3 it is not possible to divide 7. Okay. So take a number which is possible. Clear? No? So we can take 7 and here downside also 7. So you can see 7 divided by 7. That means 7, how much is 7? 1. So 1. And here 35 divided by 7. That means 7, how much is 35? 7 5s are 35. Okay. So 1 is to 5. So what I can write, therefore 14 is to 70 and 1 is to 5 are the two equivalent ratios of what? 7 is to 35. And this is the answer. So I hope question number 2, 3, 4 you have understood nicely. So practice these sums. Okay. So वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ. तब तक के लिए